Namaskar. Let us go ahead in chapter cell. See, what is the difference between prokaryotic and eukaryotic cell? यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल का नाम ही यू मीन्स इवॉल्व एंड कैरियोस मीन्स न्यूक्लियस, इस तरीके का है। यानी वहाँ पे वेल इवॉल्व्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, whereas here the nucleoid is present, means highly coiled single circular DNA is present and membrane bound cell organelles are not present. जैसे कि साइनोफैसियल ग्रैन्यूल्स या स्टार्च ग्रैन्यूल्स etc. they are present here. Mesosomes, chromatophores, they are present, but they are not membrane bound structures. So here the membrane bound cell organelles are not present. These cells are very small, जैसे हमने लास्ट पीरियड में देखा था कि ये वाली सेल यूकैरियोटिक सेल से कंपेयर करेंगे अगर हम, तो ये बहुत ही छोटी होती है। और जैसे हमने देखा था कि टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोन का होता है और जो यूकैरियोटिक सेल है वो 10 टू 20 माइक्रोन की होती है। 10 टू 20 माइक्रोन and 1 to 2 micron means the bacteria, typical bacteria, they are very small. Then सेल वॉल यहाँ पे सिर्फ प्लांट सेल में सेल वॉल रहती है यूकैरियोटिक सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल तो रहती है वहाँ पे, पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल वहाँ पे रहती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल नहीं रहती है वो है माइकोप्लाज्मा, जिनको हमने बोला था पीपीएलओ। You see 10 to 100 micron in diameter, so it is bigger, and 2 micron in diameter, 1 to 2 micron हमारे बुक में एनसीईआरटी के दिया हुआ है कि 2 micron, so it is smaller. Prokaryotic cells, they are smaller. Then membrane bound cell organelles as well as nucleus, nucleolus, they are not present, and unbound DNA is present, which is called as nucleoid in the prokaryote, in the bacteria. Then complex appendages, cell appendages are present. Here the appendages means what? The outcomings, membrane appendages, जो मेम्ब्रेन से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे complex appendages यूकैरियोट्स में होते हैं. Here the simple appendages are present. The structure of flagella as well as cilia, which is present in the eukaryotic cell, is complicated than that of the simple structure of flagella present in prokaryote. अगर हम prokaryotic flagella और eukaryotic flagella या cilia की बात करते हैं तो prokaryotic flagella में फ्लैजेलिन प्रोटीन का थ्रेड रहता है, जो कि एक ही थ्रेड है जो ऐसे हेलिकली ट्विस्टेड है, और सिंगल थ्रेड विच इज हेलिकली ट्विस्टेड, which is present in the flagella of prokaryotes, whereas the eukaryotic flagella or cilia shows a middle long thread, एक्सोनेमा हम जिसे बोलते हैं, और एक्सोनेमा में माइक्रोट्यूब्यूल की 9+2 अरेंजमेंट रहती है। एक्सोनेमा में माइक्रोट्यूब्यूल की 9+2 अरेंजमेंट रहती है। ये क्या चीज़ है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर्स भी हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए रहते हैं, और फ्लैजेला और सीलिया का स्ट्रक्चर हमें यूकैरियोटिक फ्लैजेला या सीलिया का स्ट्रक्चर हमें आगे सीखना है, तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तभी मैं ये फिर से एक बार रिवाइज करके दूंगी आपको। Linear DNA with histones. You see, this is very important point, differentiating point within the eukaryotes and prokaryotes, that the histone proteins which bring about coiling of DNA are present only in eukaryotes. मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, histone proteins which brings about packaging of DNA so that they can be stepwisely packed and can be converted into the stumpy chromosome, they are present. Histones are present only in eukaryotes, and histones are absent in prokaryotes. Histones are present in eukaryotes and histones are absent in prokaryotes. This is very important point. Here the circular DNA is present. Many a times we have seen the structure of nucleotides.
nucleoid, structure of nucleoid, sorry. Membrane bound organelles, membrane receptors, they are present in eukaryotes, whereas no membrane bound organelles are present in the prokaryotes. माइटोसिस होता है इनमें, एक स्टेप वाइज सेल डिवीजन होती है जिसमें पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगी, और न्यूक्लियर डिवीजन का जो प्रकार यूकैरियोट्स में होता है नॉर्मली सोमैटिक सेल्स में, बॉडी सेल्स में, वो है माइटोसिस। और इनमें माइटोसिस ना होते हुए सिर्फ बाइनरी फिजन होता है। हाँ, सेल डिवीजन जब देखेंगे तब आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड बाइनरी फिजन। यू सी, माइटोसिस कंसिस्ट ऑफ 4 stages, in which first 4 stages, and mitosis is a kind of nuclear division which normally occurs in the somatic cell or body cell of eukaryotic multicellular organisms, whereas binary fission is a very simple process in which after the complete cell growth the indentation will form, and then simply these two cells will separate from each other like this. So that is called as binary fission, यानी सेल पूरी की पूरी बढ़ती है और उसके बाद एक इंडेंशन फॉर्म होता है, देन दीज टू सेल्स विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। ओके, सेल वॉल इज सिंपल व्हेन प्रेजेंट, एंड सेल वॉल, यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल है। देखिए, सेल वॉल पे भी डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स का सस्टेनेंस इन एनी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में सेल वॉल कॉम्प्लेक्स होने के कारण ये पर्टिकुलर जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है वो खुद को बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एनवायरनमेंट में बचाए रखते हैं। they can maintain themselves, they can sustain in various kinds of environments. Okay, तो क्यों ऐसा, मैं फिर से आपको बताती हूँ कि कॉम्प्लेक्स सेल वॉल ये प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर है, स्ट्रक्चरल फीचर है, और जो सिंपल सेल वॉल ये यूकैरियोटिक सेल का फीचर है। समझ में आया? और ओमनीवोरस हम जिसे बोलेंगे, बैक्टीरिया ये ऐसे क्रीचर्स है कि वो कहीं पे भी मिलते हैं। हॉट स्ट्रीम्स में मिलते हैं जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री तक जाता है, उससे भी ज़्यादा जाता है, वहाँ पे भी हॉट सल्फर स्ट्रीम्स में भी हमें बैक्टीरिया दिखते हैं। वैसे ही बहुत ही कोल्ड रीजन में, जैसे कि टुंड्रा है, माइनस डिग्रीज में टेम्परेचर जहाँ पे जाता है, यानी -5, -6, -10 तक जहाँ पे टेम्परेचर जाता है, उससे भी कम जहाँ पे टेम्परेचर जाता है, वहाँ पे भी बैक्टीरिया खुद को सस्टेन कर पाते हैं। और फिर जब फेवरेबल टेम्परेचर मिलेगा तब फिर सिस्ट से बाहर होके आके खुद का डुप्लीकेशन करते हैं, लेकिन तब तक अनफेवरेबल टेम्परेचर में भी खुद को बनाए रखते हैं। सिस्ट कभी कभी फॉर्म करते हैं या वैसे ही रहते हैं क्योंकि उनके पास कॉम्प्लेक्स सेल वॉल है कि जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। और ना, प्रोकैरियोट्स में भी ग्रेट डाइवर्सिटी है। जो पार्ट प्रोकैरियोटिक डाइवर्सिटी का पार्ट हम क्लासिफिकेशन लेसन में सीखने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर के, सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में मैंने लास्ट पीरियड में आपको प्रोकैरियोटिक सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बताया। देखिए, सेल वॉल इज सिंपल इन द यूकैरियोट्स, whereas सेल वॉल इज कॉम्प्लेक्स इन प्रोकैरियोट्स and made up of peptidoglycan in eubacteria and pseudopeptidoglycan in archaebacteria। ठीक है, अब वहाँ पे आपका बुक आपके सामने है, you can write pseudopeptidoglycan in archaebacteria and peptidoglycan in eubacteria, that forms cell wall. In eubacteria, peptidoglycan; in archaebacteria, pseudopeptidoglycan. Cell wall is simple. Then cytoskeleton and big ribosomes are present. 80S ribosomes are present in eukaryotes, and cytoskeleton is also present. I am going to teach you about the cytoskeleton. वो ना
प्रोटीन के बने बने हुए ऐसे थ्रेड्स होते हैं कि जिनके कारण कुछ स्ट्रक्चरल रिजिडिटी मिले सेल्स को, दैट इज कॉल्ड द साइटोस्केलेटन। जैसे हमारे शरीर को बोन्स के कारण रिजिडिटी और शेप मिलता है, वैसे ही यूकैरियोटिक सेल में भी कुछ थ्रेड्स होते हैं कि जिनके कारण प्रोटीनस थ्रेड्स होते हैं जिनके कारण रिजिडिटी और शेप मिलता है यूकैरियोटिक सेल को। और प्रोकैरियोटिक सेल में कोई साइटोस्केलेटन नहीं रहता है, नो साइटोस्केलेटन, एंड द स्मॉल राइबोसोम with 70 S ribosomes are present in the prokaryotes, whereas 80 S ribosomes are present in the eukaryotes. The common features that are shown by eukaryotes as well as prokaryotes are flagella. Flagella, though the contents are different in both, but flagella are present in eukaryotes as well as prokaryotes. Then plasma membrane, similar plasma membrane consisting of lipid bilayer as well as entangled protein. The same kind of plasma membrane is present in both eukaryotes as well as prokaryotes. Then cell division is shown by both. As they are living, they will show cell division. Cytoplasm, similar cytoplasm which is showing continuous biochemical reactions, that is present in both. And ribosomes and chromosomes, they are present in both. Though the kind of ribosome in eu and prokaryotes is different, but they are present in both as a site of protein synthesis. Okay, so you can write this, ये आप लिख लीजिए और बाद में ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। दीज आर द कॉमन फीचर्स। यू सी प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है आपको, सेल वॉल भी दिख रही है। यूकैरियोटिक सेल अगर हम देखते हैं तो ऐसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कभी कभी दिख सकता है। ग्रीन प्लांट सेल्स है ये, है ना, विद सेल वॉल। प्लांट सेल्स में शो सेल वॉल, ये सेल वॉल दिख रही है। और क्लोरोप्लास्ट कितने सारे हैं, मेसोफिलिक सेल्स है ये। तो so many chloroplasts are present here. You see, chloroplast, cell wall, true plant cell structure. Now, let us see first part of the eukaryotic cell, that is cell wall. Okay, तो मैं cell wall के बारे में कुछ preliminary information आपको पहले देती हूँ, then we will read out from both books. मैं ये चाहती हूँ कि आप हर दम स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी से जो भी पाठांतर है वो दोनों बुक से करें। जो भी समझ लेना है वो दोनों बुक से आपने समझ लेना है और दोनों बुक में दिया हुआ नॉलेज आपने करना है। ऐसा नहीं है कि आप अगर सीबीएसई बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हो तो सिर्फ आप सीबीएसई का करेंगे और स्टेट बोर्ड से देने वाले हो तो स्टेट बोर्ड का, क्योंकि ये बात आप ध्यान में रखिए कि अभी तक का जो अनुभव है मेरा, वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो दोनों बुक से आते हैं। यानी प्रिलिमिनरी स्टडी जो है आपकी वो स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी ये दोनों बुक से 11th और 12th के करनी चाहिए। यानी आपने दो बुक 11th और 12th बायोलॉजी ऑफ स्टेट बोर्ड एंड सिमिलरली 11th एंड 12th बायोलॉजी ऑफ एनसीईआरटी, ऐसे 4 बुक्स आपने एक साल में पूरे करने चाहिए, ताकि अगले साल मैं 11th के बच्चों के बारे में बोल रही हूँ जो इस साल 11th में है, उनके बारे में बोल रही हूँ, ताकि ये पूरी स्टडी होने के बाद चारों बुक्स की आप vigorously क्वेश्चनायर्स के लिए जा सकते हो। लेकिन बेसिक स्टडी पहले पूरे चैप्टर्स की होनी चाहिए, तभी आप फिर यूनिट टेस्ट और फिर कंप्लीट कोर्स टेस्ट के लिए जा सकते हो। इसके साथ साथ मेरी नोट्स भी होती है, लेकिन नोट्स ज़्यादातर मैं क्लासरूम में पढ़ाऊँगी आपको, और ये जो पढ़ाना है वीडियोस के द्वारा, रिकॉर्डिंग्स के द्वारा, उसमें मैं टेक्स्ट बुक कवर कर रही हूँ और नोट्स हम क्लासरूम में कवर करने वाले हैं। ओके, यानी ये बेसिक है नोट्स
हम क्लासरूम में देखने वाले हैं। सेल वॉल डिफरेंसेस। सेल वॉल, अगर पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं तो सेल वॉल कहाँ कहाँ पे रहती है। हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल रहती है पेप्टिडोग्लाइकन। आप लिखते जाइए सेल वॉल यूबैक्टीरिया डैश पेप्टिडोग्लाइकन, आर्कीबैक्टीरिया डैश सूडोपेप्टिडोग्लाइकन। सबसे पहले सेल वॉल हेडिंग देना है, फिर यूबैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन, आर्कीबैक्टीरिया सूडोपेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन के साथ साथ स्लैश देखिए आप म्यूरिन भी लिखिए, म्यूरिन यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन होता है। फिर वहीं पे आप लिखिए प्रोकैरियोट्स में माइकोप्लाज्मा भी आता है, उनमें सेल वॉल नहीं रहती है। लिखिए माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ डैश नो सेल वॉल। ये प्रोकैरियोट्स का हो गया। अब आप नेक्स्ट लाइन में लिखिए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स शोइंग सेल वॉल। यूकैरियोट्स शोइंग सेल वॉल। नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट नंबर all plant cells basic primary cell wall is cellulosic। बाकी अलग अलग प्रकार होते हैं लेकिन उनकी जो प्राइमरी सेल वॉल है ना वो सेल्यूलोजिक होती है। लिखिए प्लांट सेल्स डैश प्राइमरी सेल वॉल इज सेल्यूलोजिक यानी मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज अ पॉलीसैकेराइड। हर चीज लिखते जाइए बेटा। जैसे ही मैंने बोला कि सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड है, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए पॉलीसैकेराइड means a long chain of saccharide, cellulose. The next right, fungi. Cell wall is made up of chitin. Chitin is also heteropolysaccharide. Chitin is heteropolysaccharide. सब चीजें लिखनी है और काइटिन हेटेरोपॉलीसैकेराइड के साथ साथ ब्रैकेट में आपको लिखना है मेड अप ऑफ N-acetyl glucosamine units. N capital N dash N-acetyl glucosamine, acetyl glucosamine जैसे बोल रही हूँ वैसे ही स्पेलिंग है N-acetyl glucosamine। ओके, तो काइटिन is a long polymer of N-acetyl glucosamine and cellulose is a polymer of glucose। ऊपर के लाइन में आपको लिखना है cellulose polymer of glucose। ओके, तो प्लांट्स में भी है, फंजाई में भी है, बैक्टीरिया में भी है सेल वॉल, लेकिन एनिमल्स के सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ओके, आगे चलते। देखिए सेल वॉल बनती कैसी है, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते। ये दो न्यूक्लियाई है प्लांट सेल की जब कंप्लीट ग्रोथ हो चुकी है। अब इसे डिवाइड करना है तो पहले इसकी डिवीजन हो गई। दो क्रोमोसोम के सेट से एक क्रोमोसोम का सेट इस न्यूक्लियस में रैप हो चुका है और दूसरा ये वाले न्यूक्लियस में। सो टू न्यूक्लियाई आर फॉर्मिंग फर्स्ट, देन Golgi apparatus will gather at the middle place of these two daughter cells। अब ये दो डॉटर सेल बनने वाली है, दो न्यूक्लियाई तो बन गए, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। तो पहले क्या हुआ, सेल का जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ना वो यहाँ पे वेसिकल्स फॉर्म करता है। इन वेसिकल्स को बोला जाता है फ्रैगमोप्लास्ट। दिस वेसिकल्स आर कॉल्ड एज फ्रैगमोप्लास्ट। जैसे ही दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया, सेल का डिवीजन दिखा है यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डबल लेयर्ड, गोल्गी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लाइन अप हो गया और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के जो फ्रैगमेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं दे आर कॉल्ड एज फ्रैगमोप्लास्ट। द फ्रैगमेंट्स derived from the Golgi complex they are called as fragmoplasts।
दे विल फॉर्म मिडल लैमेला। ये जो है ना, ये क्या है, सबसे सबसे पहले क्या होगा, देखिए, दो न्यूक्लिया का फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स विल गैदर देयर, it will form फ्रैगमोप्लास्ट, फ्रैगमोप्लास्ट will form सेल प्लेट, फ्रैगमोप्लास्ट ही क्या फॉर्म करने वाली है वहाँ पे, सेल प्लेट फॉर्म करने वाली है, और फिर सेल प्लेट ऐसे दोनों सेल के बीच में मिडिल लैमेला फॉर्म करेगा। ये दिख रहा है आपको, एक व्हाइटिश रेशा जो है ना, दैट इज कॉल्ड एज मिडिल लैमेला, and that is present within two newly formed daughter plant cells, ये है middle lamella, and then inner cytoplasm and cell wall will form again। तो ये जो white color का आपको दिख रहा है that is middle lamella, and then two sides of the middle lamella, at two sides of the middle lamella again the cell wall, जो येलो कलर का आपको दिख रहा है वो है उसका सेल वॉल, और उसके नीचे जो रेड स्ट्रिप दिख रही है वो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आपको समझ में आ गया? फिर से एक बार, ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, दो न्यूक्लिया फॉर्म होंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रिप फॉर्म करेगा, वहाँ पे लाइन अप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैगमोप्लास्ट। दीज फ्रैगमोप्लास्ट विल फॉर्म द सेल प्लेट, ये सेल प्लेट ही है यहाँ पे। सेल प्लेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला इज the partition within two newly formed plant cells, middle lamella partition within two plant cells, ओके। तो ये है मिडिल लैमेला, और मिडिल लैमेला के दोनों तरफ जो येलो कलर का लेयर आपको दिख रहा है, क्योंकि मिडिल लैमेला वाइट कलर का दिख रहा है, उसके दोनों तरफ जो येलो कलर का लेयर है वो है उसकी सेल वॉल, और उसके दोनों तरफ जो रेड कलर का लेयर है वो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी दो सेल एक दूसरे से टोटली सेपरेट हो चुकी है। अब ये जो मिडिल लैमेला बोलिए या फ्रैगमोप्लास्ट बोलिए या सेल प्लेट बोलिए, इन सभी में जो केमिकल इंग्रेडिएंट होता है वो है कैल्शियम पेक्टेट। इन सभी में जो केमिकल इंग्रेडिएंट है वो है कैल्शियम पेक्टेट। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स पहले यहाँ पे कैल्शियम पेक्टेट के वेसिकल्स जमा करती है, उन्हीं वेसिकल्स को हम बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। वही कैल्शियम पेक्टेट से आगे जाते हुए सेल प्लेट बनेंगे, और सेल प्लेट का कन्वर्शन मिडिल लैमेला में होने वाला है। यानी अगर हम शुरू करना चाहते हैं तो हम कहाँ से करें, ये पूरी लाइन आपको लिखनी है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स स्टोर्स कैल्शियम पेक्टेट, एरो देके लिखिए फ्रैगमोप्लास्ट, एरो देके लिखिए सेल प्लेट, एरो देके लिखना है मिडिल लैमेला, ओके। तो फिर से एरो देके लिखिए मिडिल लैमेला इज प्रेजेंट विद इन टू प्लांट सेल्स, एंड वो भी लिखिए आउटर टू मिडिल लैमेला व्हाट इज प्रेजेंट देयर, cell walls, outer to middle lamella cell walls of two plant cells, and outer to cell walls the plasma membrane of two plant cells is present। सब कुछ लिख लीजिए। तो ये सभी किससे बना है, कैल्शियम पेक्टेट से बना है। तो दूसरे शब्दों में आप क्या लिख सकते हैं वहाँ पे, कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। Calcium is necessary for cell division, and cell division will bring about plant growth. Calcium is necessary for cell division and plant growth. Every line should be written, then and then only it will be remembered. सिर्फ सुनना नहीं है, बैठना नहीं है वहाँ पे हाथ रखे। देखिए ये है मिडिल लैमेला, सबसे बाहर का रहेगा ना, फिर ये प्राइमरी सेल वॉल है, फिर ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इमेजिन कर लिया आपने, सेल्यूलोज के पॉलीमर से बनता है, सॉरी ग्लूकोज के पॉलीमर से बनता है सेल वॉल, सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज से बनता है सेल वॉल। देखिए दिस इज मिडिल लैमेला, ये सेल्यूलोज के पॉलीमर्स आपको दिख रहे हैं, और ये लिपिड बाइलेयर का बना हुआ मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर
समझ में आ गया आपको? सबसे बाहर है मिडल लैमेला, उसके तरफ दूसरी प्लांट सेल की सेल वॉल रहेंगी। समझ में आया ना? यह है मिडल लैमेला, मिडल लैमेला के दूसरे तरफ इधर दूसरे प्लांट सेल की सेल वॉल रहेंगी, और ये वाली पहले प्लांट सेल की सेल वॉल है। उसके नीचे आपको लिपिड बाइलेयर का मेम्ब्रेन दिख रहा है। ये लिपिड बाइलेयर है, दो लेयर दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। फिर यहाँ पे क्या और चीजें आपको दिख रही है? दिस इज प्राइमरीली फॉर्म्ड, ओके, पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी हुई। ये पेक्टिन के स्ट्रिप्स है, स्ट्रिंग्स है, और ये सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। ये है हेमी सेल्यूलोज, ये है सेल्यूलोज, ये है पेक्टिन, and various soluble proteins are also present there. You see, ये ग्रीन कलर के जो पॉलीमर्स दिख रहे हैं आपको वो हेमी सेल्यूलोज है, और जो येलो कलर के पॉलीमर्स दिख रहे हैं वो सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स है। माइक्रोफाइब्रिल्स का मतलब छोटे थिन फाइब्रिल्स होता है। यहाँ भी आपको लिग्निन भी दिख रहा है। लिग्निन अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, ये ना स्टेरॉइड है, फैटी लेयर। और जब ये फैटी लेयर यहाँ पे सेल के ऊपर बन जाता है ना, तब बाहर से अंदर और अंदर से बाहर कुछ सेल में नहीं जाता है, और ज़्यादातर लिग्निन के डिपोजिशन के कारण सेल वॉल में जब लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है तब सेल मर जाती है। ये वाली सेल लाइव सेल है, क्योंकि अंदर बाहर कुछ जा रहा है, मेटाबॉलिज्म शुरू है, लेकिन लिग्निन के डिपोजिशन के बाद सेल मर जाती है, क्योंकि अंदर बाहर कुछ नहीं जा सकता है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स आर फाइबर कंपोजिट्स। ये प्राइमरी सेल वॉल है, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल्यूलोज फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, ये फाइबर्स सेल्यूलोज के, और ये पेक्टिन है। अब प्लांट सेल के बारे में और एक दो फोटोज हम देखते हैं। एक चीज याद कीजिए, मिडल लैमेला के आजू बाजू में जो रहेगा ये प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है, मिडल लैमेला है ये रेड कलर का, उसके आजू बाजू में है प्राइमरी सेल वॉल, और उसके आजू बाजू में है सेकेंडरी सेल वॉल। यानी कि सेकेंडरी सेल वॉल हरदम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में रहती है। लिखिए आप, सेकेंडरी सेल वॉल डैश प्रेजेंट विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल। लेयर्स याद करो, बहुत सिंपल है बेटा। प्राइमरी सेल वॉल हरदम सेल्यूलोजिक है, सेकेंडरी सेल वॉल में कुछ डिपोजिशंस हो सकते हैं। तो सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ पे फॉर्म होती है? प्राइमरी सेल वॉल, ये है प्राइमरी सेल वॉल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होती है। देखिए, सेकेंडरी सेल वॉल इज प्रेजेंट विद इन प्राइमरी सेल वॉल, एंड ये है प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Secondary cell wall deposition occurs within primary cell wall and plasma membrane. Primary cell wall and plasma membrane. Okay. सिर्फ और सिर्फ लेयर्स याद करने हैं बेटा आपको। कितना आसान है ये सब। ये देखिए, ये है मिडल लैमेला, ये है प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल के ये पूरे लेयर से यहाँ से यहाँ तक, और सबसे अंदर का जो लेयर है वो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर का लेयर, और ये है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जितने भी डिपोजिशंस हुए हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। ये कहलाते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। और जैसे जैसे सेकेंडरी सेल वॉल और थिक होते जाती है वैसे वैसे प्लांट सेल मरती जाती है, क्योंकि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कुछ गिव एंड टेक नहीं है, यानी अंदर का जो लिविंग मटेरियल है सेल का वो मरते जाता है। क्योंकि जब तक के गिव एंड टेक है, आप जब खाना खाएंगे या श्वास लेंगे, यानी जब तक कि गैसियस एक्सचेंज या फूड एक्सचेंज हो रहा है तब तक तो आप जीवित रहेंगे। अगर गैसियस एक्सचेंज या फूड एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो मर जाएंगे।
वैसे ही ये सेल मर जाती है अगर गैशियस एक्सचेंज या फूड एक्सचेंज नहीं होता है तो, एंड दैट ऑल ऑकर्स थ्रू प्राइमरी सेल वॉल प्रॉपरली। ओके, जब तक कि प्राइमरी सेल वॉल प्रॉपरली होती है तब एक्सचेंज होता है। फिर से लेयर्स याद कीजिए, ये जो है मिडल लेवल है रेड कलर का, उसके बाहर का डार्क येलो जो है वो है दिखाता है हमें प्राइमरी सेल वॉल के बारे में, और ये सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन है, और उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छे से याद हो गया बेटा? देखो, ये प्राइमरी सेल वॉल का लेयर है, सेकेंडरी सेल वॉल का लेयर बहुत ही मोटा होता है, ठीक है? ये है सेकेंडरी सेल वॉल, ये जो थिन लेयर है वो है प्राइमरी सेल्यूलोजिक सेल वॉल, और ये दोनों के बीच में जो है मिडल लैमेला है। So this is primary cell wall, this is middle lamella within two primary cell walls, और ये है secondary cell wall, दोनों तरफ की secondary cell wall है, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे अंदर का जो मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म को लेयर करने वाला, that is the plasma membrane, and so this is middle lamella. Okay, middle lamella कैसे बनता है मैंने अभी अभी आपको दिखाया। I think we have completed the portion of cell wall. जैसे जैसे सेल डिफ्रेंशिएट होते जाती है वैसे वैसे सेल वॉल और मोटी होती जाती है, that becomes more differentiated. Cell wall becomes more thicker and thicker as the cell differentiates more and more. जैसे कि मेरिस्टेमेटिक सेल में जो सेल वॉल रहती है वो बहुत ही थिन रहेगी। ये वाला जो रीजन है ना, ये मेरिस्टेमेटिक, जहाँ पे देखिए सेल डिवीजन दिखा रहे हैं, ये सेल की डिवीजन दिखा रहे हैं, तो सेल डिवीजन जहाँ पे हो रही है वो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। दे ओनली डिवाइड इन द प्लांट्स, तो उनमें सेल्यूलोजिक थिन सेल वॉल रहती है। अगर वो पैरेन्काइमेटस है तो भी उसमें सेल्यूलोजिक सेल वॉल रहती है। पैरेन्काइमेटस सेल आल्सो शो सेल्यूलोजिक सेल वॉल, जो कि और थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड है, परमानेंट है, उनमें सेल डिवीजन नहीं होती है। Dividing cells in the plants are called as meristematic. Repeat करो, dividing cells in the plants are called as meristematic. यहाँ पे सेल डिवीजन दिखाई है, क्रोमोसोम का डिवीजन दिखाया है, so that is the dividing or meristematic cells. Meristematic cell in the plant. जो भी नॉन डिवाइडिंग सेल है उनको हम पैरेन्काइमेटस बोलते हैं। They are differentiated. First kind of permanent tissue in the plant, that is parenchyma. ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं डिफ्रेंसिएशन में आगे जाते हैं, दिस इज पैरेन्काइमेटस सेल। देखिए सेल वॉल और थिकर होते जाती है। ये है पैरेन्काइमा, ये दिखा आपको, ये पैरेन्काइमा है थिन एंड सेल्यूलोजिक। फिर पैरेन्काइमा और मेरिस्टेम में क्या फ़र्क है? पैरेन्काइमा में भी थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल है और मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग सेल्स में भी थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। फ़र्क ये है कि ये परमानेंट सेल्स है, पैरेन्काइमा की जो सेल है ना वो है परमानेंट, वो अभी डिवीजन नहीं दिखा रही है। और जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है दे आर शोइंग डिवीजन, देयर न्यूक्लियर मटेरियल इज डिवाइडिंग एंड दैट सेल विल डिवाइड। Such cells are called as meristematic cells. ये वाली है परमानेंट सेल, ये वाली परमानेंट सेल पैरेन्काइमा की, यहाँ पे भी सेल्यूलोजिक सेल वॉल ही है। They are present in various parts of the plant body. Their functions we will discuss in the chapter of anatomy. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद करो कि जो पैरेन्काइमा की सेल है वो भी सेल्यूलोजिक सेल वॉल ही दिखाती है। जो कोलेनकाइमा की सेल है वो कॉर्नर्स पे पेक्टिन का डिपोजिशन दिखाती है सेल वॉल में। कोलेनकाइमा की सेल कॉर्नर्स पे पेक्टिन का डिपोजिशन दिखा रही है। देखो ये कोलेनकाइमा है, ये कॉर्नर्स दिखे इनके, यहाँ पे पेक्टिन का जो रेड कलर से दिखाया है वो पेक्टिन है। Parenchyma cells show pectin depositions at their corners.
देखिए, यानी कि प्रॉपर एक कंटिन्यूस पेक्टिन डिपोजिशन ना होते हुए कॉर्नर्स पे पहले वो होता है एंड देन कंटिन्यूस पेक्टिन डिपोजिशन विल occur. So at their corners they show pectin deposition. Apart from that, the cellulosic cell wall is also present here in the collenchyma. और जो collenchyma में आपको लार्ज वैक्यूल भी दिख रहा है, तो पहले सेल वॉल के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम वैक्यूल्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे क्या दिखा फिर कि cell walls they are becoming thick, pectin deposition starts in the collenchyma and cell walls become thickest in the sclerenchyma. यहाँ पे sclerenchyma में पूरा का पूरा जो दिख रहा है ना आपको, वो सेल वॉल ही है। ये बाहर की प्राइमरी सेल वॉल है और अंदर की सेकेंडरी सेल वॉल है उनकी। और ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है स्क्लेरेंकाइमा में, वो पूरी की पूरी सेल वॉल है और अंदर उसके छोटा सा ल्यूमेन दिख रहा है, जहाँ पे लिविंग मटेरियल नहीं रहेगा, वो वैक्यूम स्पेस रहती है, वैक्यूल रहता है वहाँ पे। The living material is not present in the sclerenchyma because sclerenchyma are dead cells. So in the sclerenchyma, cell wall forms with the help of lignin or suberin. कोलेनकाइमा में सेल वॉल बनती है पेक्टिन के डिपोजिशंस से, जो कि कॉर्नर्स पे डिपोजिशन होता है पेक्टिन का, कॉर्नर्स पे डिपोजिशन होता है पेक्टिन का। और cell wall in the collenchyma is made up of secondary cell wall is made up of pectin. आपको समझना है, बहुत ही आसान है। प्राइमरी सेल वॉल के बारे में मैं नहीं बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू अबाउट द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल सभी में सेल्यूलोजिक ही रहेंगी, मेरिस्टेम में, पेरेंकाइमा में, कोलेनकाइमा में, स्क्लेरेंकाइमा में। जो प्राइमरी सेल वॉल रहती है वो सेल्यूलोजिक ही रहती है, लेकिन ये सभी में, मेरिस्टेम में तो सेकेंडरी सेल वॉल रहती नहीं है, वो तो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल है, नो सेकेंडरी सेल वॉल। लेकिन पेरेंकाइमा में भी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं रहती है, थिन प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट। थोड़ा बहुत और थिकनिंग होता है, जो जिसको हम थोड़ा बोल सकते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। But here also the cellulosic cell wall is present, but in collenchyma, secondary cell wall formation starts. It is very thick and made up of deposition of pectin at corners. ये जो पूरा है ना, वो सेकेंडरी सेल वॉल है। फिर इनमें जो भी आपको दिखता है वो पूरा का पूरा सेकेंडरी सेल वॉल ही है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये पूरा का पूरा सेकेंडरी सेल वॉल है। स्क्लेराइड्स है ये अंदर की तरफ एक छोटा सा वैक्यूल दिखता है और वैक्यूल से लेके यहाँ तक पूरा डिपोजिशन हुआ है सेकेंडरी सेल वॉल का। यानी स्क्लेरेंकाइमा में जो आपको दिखता है वो सिर्फ सेकेंडरी सेल वॉल है, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म या सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कुछ भी नहीं दिखता है। यानी स्क्लेरेंकाइमा में जो आपको दिख रहा है ये स्क्लेराइड्स या स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स में जो आपको दिखता है, फाइबर्स यानी इलोंगेटेड सेल्स होती है और स्क्लेराइड्स यानी गोल गोल सेल्स होती है, जिनको हम स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। उनमें जो भी दिख रहा है वो उनकी सिर्फ सेल वॉल है। जो भी स्क्लेराइड्स में दिख रहा है या स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स में आपको दिख रहा है वो सिर्फ उनकी सेल वॉल है, उनमें लिविंग मटेरियल है ही नहीं, बिकॉज दे आर डेड सेल्स। सिर्फ सेल वॉल ही थिक हो चुकी है, बट दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। ये जो है ये क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल, इट इज नॉट द प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल इज ऑलवेज सेल्यूलोजिक। ओके, यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन, वहाँ पे सुबेरिन या लिग्निन का डिपोजिशन होता है स्क्लेरेंकाइमा सेल्स में। यानी एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि अलग अलग स्तर अगर हम उनके डिफ्रेंसिएशन के देखते हैं, किसके, प्लांट सेल के, तो उनमें अलग अलग सेल वॉल रहती है। पीछे का रिकॉर्डिंग आप फिर से देखिए, और जहाँ पे जो सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए मदद करता है वो वहाँ पे फिर से आपको देखना है। मेरा हर एक वाक्य आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
सो दीज ऑल आर सेकेंडरी सेल वॉल्स. ओके, प्राइमरी सेल वॉल नहीं है, डिफ्रेंसिएशन होते होते सेकेंडरी सेल वॉल्स का डिपोजिशन उनके ऊपर ज़्यादा ज़्यादा होते जाता है, बढ़ते जाता है. Let us now read about the cell wall from your book, State Board. It is a rigid, supportive and protective outer covering of the plasma membrane of plant cell. जैसे जैसे पढ़ते हो ना वैसे आंखों के सामने आना चाहिए कि what is given there. इमेजिन करते जाओ बेटा, सिर्फ पढ़ना नहीं है, पोपट पंची नहीं करनी है, आपको उसके बारे में सोचना भी है, इमेजिन भी करना है आप किसके बारे में पढ़ रहे हो. जैसे कि अगर आप शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ते हो तो आपके आँखों के सामने शिवाजी महाराज आ जाते हैं. आप सिर्फ नाम ले रहे हो उनका? नहीं, आप उनके काम और उनकी फिगर भी आपके सामने आ जाती है. वैसे ही जब आप पढ़ते हो ना, तब जो भी फिगर्स मैं आपको दिखाती हूँ वो भी आपकी आँखों के सामने आनी चाहिए, सिर्फ पढ़ना नहीं है. Of plant cells, fungi and some protists. कहाँ पे सेल वॉल? प्लांट सेल में है, फंजाई में है, काइटिनस सेल वॉल रहती है वहाँ पे. काइटिन इज अ हेटेरोपॉलीमर मेड अप ऑफ मेनी यूनिट्स ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन. अब होमोपॉलीमर जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये ग्लूकोज का होमोपॉलीमर कहलाता है. देखिए ग्लूकोज के so many units, they are attached together to form a thread-like structure which is called as cellulose. Many glucose units, they are attached together to form a thread-like structure which is called as cellulose. Correct? Primary cell wall, cellulose. Secondary cell wall, pectin in cholenchyma. Pectin in cholenchyma, ये परमानेंट टिश्यू है और ये मेरिस्टेमेटिक. ये मेरिस्टेम यहाँ पे रहता है, परमानेंट बाकी जगह पे रहेगा प्लांट के. ये पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा में भी सेकेंडरी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोजिक रहती है. एंड इन द कोलेनकाइमा सेल वॉल is made up of pectin depositions at the corners. Then in sclerenchyma, secondary cell wall is made up of lignin and suberin. नाम लिखते जाना है, काम या उनमें रहने वाले इंग्रेडिएंट्स लिखते जाने हैं. मेरिस्टेम, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. हर एक के सेल वॉल के बारे में मैंने अभी आपको बताया है ना. हर एक में अलग अलग सेल वॉल रहती है. मेरिस्टेम में सेल्यूलोजिक, पेरेन्काइमा में भी सेल्यूलोजिक, कोलेनकाइमा में सेल्यूलोजिक प्राइमरी तो है लेकिन सेकेंडरी पेक्टिन भी फॉर्म होती है. स्क्लेरेन्काइमा में सेल्यूलोजिक प्राइमरी है लेकिन प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कुछ डिपोजिशन होने लगता है जो कि लिग्निन या सुबेरिन का होता है. दैट इज अबाउट द स्क्लेरेन्काइमा. जैसे जैसे डिपोजिशन बढ़ते जाता है वैसे वैसे देखिए, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इनके बीच में ये जो है ना, ये सेकेंडरी सेल वॉल है. ठीक है, अच्छा ये भी सेकेंडरी सेल वॉल है, उसके अंदर है थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, कितना मैं बिल्कुल सरल करके आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ. अब तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाना चाहिए. Algae show presence of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate in the cell wall. Every line is important. इस लाइन पे क्वेश्चन आया है नीट में. ICAR की जो पढ़ाई कर रहे हैं सभी ने क्या करना चाहिए, जो भी हर एक लाइन में पढ़ाती हूँ, IISc बोलो, ICAR बोलो, नीट बोलो, आइजर बोलो, KVPY बोलो, नेस्ट बोलो, सभी ने ये सभी एग्जाम्स के लिए हर लाइन आपने अच्छी तरीके से याद करनी चाहिए. Algae show presence of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate in cell wall.
In other plants, it is made up of hemicelluloses, pectin, lipids, and proteins. Microfibrils of plant cell wall show presence of, अभी जो microfibrils मैंने दिखाए थे आपको लंबे लंबे fibers, they show presence of cellulose which is responsible for rigidity. Some of the depositions of cell wall are silica, grass stem में कभी कभी सिलिका डिपोजिशन होता है, लेकिन जो डायटम्स होते हैं ना उनके भी सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन होता है. डायटमस सॉइल उसी के कारण बनती है. आपको लिखना है सिलिका डिपोजिशन इन द सेल वॉल ऑफ डायटम्स, ब्रैकेट में लिखिए क्राइसोफाइट्स. सिलिका डिपोजिशन in the cell wall of diatoms, in bracket write chrysophytes, CHRYOPHYTES. So silica deposition in the grasses, क्यूटीन मोनोकॉट्स में सिलिका डिपोजिशन होता है. कोई कोई ग्रास जैसे कि लेमन ग्रास के लीफ अगर आपने देखे हैं ना तो कितने सरसरीत होते हैं, जिसको हम अगर हाथ भी हमारा कट सकता है उसके ऊपर से अगर हमने घुमाए तो, क्योंकि उसमें सिलिका डिपोजिशन रहता है उनके सेल वॉल के ऊपर, लीव्स के सेल वॉल के ऊपर. समझ में आया? सो समटाइम्स सिलिका डिपोजिशन विल बी देयर, सो दे विल बिकम वेरी मच स्टिफ. क्यूटीन एपिडर्मल वॉल्स ऑफ लैंड प्लांट्स, क्यूटीन का डिपोजिशन होता है. एपिडर्मल सेल्स जो रहती है, एपिडर्मल्स मीन्स द अपर मोस्ट लेयर, उनके ऊपर क्यूटीन का डिपोजिशन होगा सेल वॉल में. सुपेरियन एंडोडर्मल सेल्स ऑफ द रूट, ये भी याद करो. वैक्स लिग्निन, इन सब का डिपोजिशन वहाँ पे हो सकता है. बोल बोल के याद करो. इट गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स from the mechanical injury and infections. The in plants, cell wall shows middle lamella, primary wall, and the secondary wall. Middle lamella, it is thin and lies between two adjacent cells. It is first structure formed from the cell plate during cytokinesis. यही प्रोसेस मैंने आपको बताया. साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल डिवीजन. अभी अभी मैंने सेल डिवीजन में मिडल लैमेला का फॉर्मेशन फ्रैगमोप्लास्ट या सेल प्लेट से कैसे होता है बताया है. फिर से एक बार देखो. इट इज मेनली मेड अप ऑफ पेक्टिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स. पेक्टिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से मिडल लैमेला बना हुआ है. सॉफ्टनिंग ऑफ ripe fruit is due to solubilization of pectin. Very important. जब तक कि फ्रूट अनराइप्ड होता है तब तक कड़क रहता है, उसके बाद वो ढीला हो जाता है क्योंकि पेक्टिन का सोल्यूबलाइजेशन होके डिसोसिएशन होता है पेक्टिन का. इसीलिए जो कच्चे आम है वो कड़क रहेंगे लेकिन पके हुए नरम हो जाएंगे, बिकॉज देयर सेल वॉल शो solubilization of pectin. Every concept is important. बोल के देखो फिर से एक बार कि पहले कैल्शियम पेक्टेट का डिपोजिशन अच्छी तरीके से होता है. जो अनराइप्ड मैंगोज है, अनराइप्ड फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है उनमें, फ्रूट लाइक वेजिटेबल्स है उनमें, और जब वो राइप हो जाते हैं जैसे कि टोमेटो पिलपिला हो जाता है जब वो रेड कलर का हो जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेक्टिन का सोल्यूबलाइजेशन होता है. प्राइमरी वॉल इन यंग प्लांट सेल, इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, यानी वो ग्रो हो सकती है. प्राइमरी वॉल बड़ी हो सकती है, लेकिन एक बार अगर सेकेंडरी वॉल का वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाए तो सेल रिजिड हो जाएंगे, अब वो नहीं बढ़ सकती है. Primary cell wall can show growth, not the secondary cell wall. It is laid inside to middle lamella. It is the
only wall seen in the meristematic tissue, mesophyll, pith, etc. ये सब शब्द ना जब प्लांट एनाटॉमी हम देख लेंगे उसके बाद अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। तब तक ऐसे ही पढ़ो, कुछ समझने में आएगा जब एनाटॉमी हो जाएगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर से इस चैप्टर की तरफ आप जा सकते हो, रिकॉर्डिंग फिर से देख सकते हो। Secondary wall, it is present inner to primary wall. Once the growth of primary wall stops, secondary wall is late. Once the growth of primary wall stops, secondary wall is late. It comes at some places. Thickening is absent, which leads to formation of pits. Plasmodesmata are cytoplasmic bridges between neighboring cells. अच्छा, मैं प्लाज्मोडेस्माटा आपको दिखाती हूँ। ये दो सेल्स के बीच में ब्रिज रहता है। इट शोज पोर्स बिटवीन द सेल वॉल एंड मिडल लैमेला। यू सी, दीज आर प्लाज्मोडेस्माटा। देखा आपको, ये सबसे बाहर का है सेल वॉल, है ना, और ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो डेस्मो का मतलब होता है जोड़ने वाला। दोनों के प्लाज्मा या साइटोप्लाज्म को जो जोड़ता है ऐसा ब्रिज, ये वाला ब्रिज, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। सो अगेन, प्लाज्मोडेस्माटा इज द ब्रिज विद इन एडजेसेंट साइटोप्लाज्म्स ऑफ द सेल्स। एडजेसेंट सेल्स के साइटोप्लाज्म को जोड़ने वाला जो ब्रिज होता है उससे हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। And that is the pore within cell walls and plasma membranes. That is the pore within cell walls and plasma membrane. Okay, plasmodesmata. So here the description of the cell wall is completed. In the next period we will see plasma membrane. Bye, till then, bye.